Hello, students. Welcome back to our revision part for your second unit test exam. In last lecture, I have started chapter number 1, writing about writing. Revision part 1. Now, I'll explain you the remaining part of this chapter. Now, again and again, we are doing the revision so that you are knowing the things properly. So whenever you learn for exam, you have to read the title, from which part it is taken, what it is, a story or report or article, what it is, you have to learn that thing also, and who is the writer, who is the poet of the given chapter. Okay, poet is of the poem and writer is of the chapter. Okay, so here in this chapter, the story is given strong desire, wise action from the adventures of Tom Sawyer and written by Mark Twain. And part 1, I explained you what we have seen in part 1. We have seen in part 1 that it is summer morning and Saturday is there, and Tom comes out of the house to paint the tall fence, and he is very disappointed because the fence is too long, and he is working in a sad mood, and he fears that he cannot continue the work because it is too big for him. At that time, Jim, the family servant, appears, who is going to fetch the water for the family, and Tom suggested him that he would fetch the water, but instead Jim had to paint. But Jim is not interested, and then also Tom offered him one of the plaything, even though he does not show his interest in doing such things. Now he also told Jim that he should not be afraid of Aunt Polly, but Jim ran away with the plaything and Tom had to continue with the painting. Then in second part we have seen that when Tom was painting the fence, at that time a bright idea came into his mind. He was thinking about his plan which he made. What was the plan? That he will go to the river for swimming with Huck. And all these thoughts were in his mind while doing the work. At that time, he was disappointed, he was sad. And a bright idea came into his mind during this situation. And he quietly started his work. And at that time, Ben Rogers appeared. Ben Rogers appeared. Tom was afraid of his laugh, Ben's laugh, because he used to make noises like a big river boat and like a bell and captain of the boat and boat bell, etc., etc. He behaved like a river boat and stopped there and asked Tom about his work. Till here we have seen. Now let's continue. But when Ben Rogers appeared, at that time also, Tom did not give a look at Ben and continued his painting, and Ben was very much surprised. He asked that whether he was in trouble, but Tom gave no answer and continued his work. Ben came nearer, but Tom had seen an apple in Ben's hands and he wanted that apple. Ben turned suddenly and asked whether Tom turned suddenly and asked Ben that, oh, it's you, तुम हो, I have not seen you, मैंने तुम्हें नहीं देखा. Okay, so what Ben said,
that I was going for swimming, and I thought that I should ask you whether you are coming or not. But you are doing work. पर तुम काम कर रहे हो, है ना? टॉम ने ऐसे कहा। टॉम ने फिर जिम ने ऐसे बेन ने ऐसे कहा। फिर टॉम ने क्या कहा, इज़ इट वर्क? ये वर्क थोड़ी है, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हॉबी है, पैशन है ये मेरा। ओके, अगर कोई उसे काम की तरह देखेगा तो वो काम है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगा, वो शो ऑफ करने लगा दैट ही इज़ एन्जॉइंग द वर्क। ऐसा दिखाने के लिए वो शो ऑफ करने लगा। ओके, फिर वापस से वो पेंटिंग करने लगा। और वो क्या बोला, क्या सोच रहा था कि ये आइडिया उसका काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन टॉम सॉयर के लिए ये ठीक था। ओके, फिर बेन से रहा नहीं गया। बेन ने क्या पूछा, इट मीन्स यू आर एन्जॉइंग द वर्क। ओके, तो टॉम क्या बोल रहा है, एन्जॉइंग? क्या एक बॉय है, उसे ये चांस एवरीडे मिलता है? ये तो न्यू आइडिया है। बेन ने अब अपना एप्पल जो खा रहा था ना, उसे स्टॉप कर दिया और उसे क्या कहा, प्लीज़ गिव मी द पेंटिंग, आई विल डू द पेंटिंग एंड इन रिटर्न आई विल गिव यू स्मॉल पार्ट ऑफ माई एप्पल। कि मुझे थोड़ा पेंट करने दो, उसके बदले में मैं मेरे एप्पल का कुछ पार्ट तुम्हें दे दूँगा। टॉम ने सोचा, फिर क्या बोला, नहीं बैन, नो बैन। आंट पॉली सोचती हैं कि ये फेंस है, दिस फेंस टू बी परफेक्ट, एंड इफ़ इट वॉज बिहाइंड द हाउस देन इट्स ओके, यू कुड हेल्प, बट बिसाइड द स्ट्रीट द फेंस मस्ट बी डन वेरी केयरफुली। और उसने लास्ट में स्टेटमेंट दिया ना, उससे बेन से रहा नहीं गया। उसने क्या स्टेटमेंट दिया, देर इज़ नॉट वन बॉय इन 1,000 हु कैन डू इट वेल। कि 1,000 में भी एक बॉय नहीं है जो ये काम अच्छे से कर सके। खुला चैलेंज दे दिया उसे। ओके, फिर क्या बोला उसने कि अरे टॉम, मुझे करने दो ना, मैं बहुत ही केयरफुल रहूँगा, आई विल डू इट केयरफुली एंड आई विल गिव यू अ पार्ट ऑफ माई एप्पल। फिर टॉम बहुत उसे बता रहा है ऐसा कि नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है कि तुम बिगाड़ दोगे ये मेरा काम। ओके, फिर बेन क्या बोल रहा है, ओके ओके ठीक है, चलो आई विल गिव यू ऑल ऑफ माई एप्पल। ओके, धीरे से फिर टॉम है, उसने सोचा हाँ बहुत अच्छा हुआ। ओके, कि बेन है अब तो पूरा एप्पल मुझे दे रहा है। तो उसने धीरे से स्लोली ही गिव द ब्रश टू बैन, बट ही वॉज वेरी हैप्पी इन हीज हार्ट। एंड वाइल द बॉय बिफोर फ्यू मोमेंट्स, जो रिवर बोट वर्कर की तरह काम कर रहा था, नाउ ही स्टार्टेड पेंटिंग इन द हॉट सन एंड टॉम सेट अंडर द ट्री ईटिंग द एप्पल एंड प्लानिंग how to get more help from the other boys. Now in that street there were enough boys, बहुत सारे लड़के थे। One by one they came along the street, stopped to laugh, पहले तो हंस रहे थे वो सब उसे देखकर, then they stopped to laugh but remained to paint, लेकिन वो पेंट करने के लिए तैयार हो गए। कौन कौन था उनमें से? Who were there? After Ben, Bill Fisher painted, then Johnny Miller came, and ये जो लड़के हैं उन्होंने ये काम किया। बैन के बाद बिल फिशर, देन जॉनी मिलर। ईच वन पेड टू बी अलाउड टू वर्क। ओके, हर एक बॉय ने वर्क करने के लिए पैसे दिए, मतलब चीज़ें दी टॉम को। एंड इन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून टॉम वॉज वेरी रिच हो गया टॉम मिडल ऑफ द आफ्टरनून तक, because he had many playthings, a small cat with one eye, a piece of broken blue glass, and much more things he got. And after all, beside all these things, the main thing is that he had not worked. उसने कोई काम नहीं किया। Then also the whole fence had been painted 3 times. ओके, पूरी फेंस है वो 3 times है वो पेंट हो गई। एंड देर वॉज नो मोर पेंट, अब ज़्यादा पेंट भी नहीं बचा था। विथ मोर पेंट टॉम वुड सुन हैव ओन्ड एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द अदर बॉयज़। ओके, ज़्यादा जो चीज़ें ज़्यादा पेंट होता तो टॉम है और भी सारी चीज़ें हैं वो हासिल कर सकता था, और गांव के विलेज के जो दूसरे बॉयज़ थे उनके पास कुछ भी नहीं बचता।
Okay, the last line is very important. Tom had discovered a great law of human action. A man or a boy will desire something if it is not easy to get. जो easy to get होता है ना, वो कोई भी इंसान है उसे पाने की चाहत नहीं रखता है, इच्छा नहीं रखता है. बट जो चीज़ टफ होती है ना, जिसे मिलने में बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, वो चीज़ की इच्छा सब लोग रखते हैं. ओके, जैसे अभी आप देखेंगे तो आपके आसपास में भी, आपके घर में भी सभी लोग, आपके क्या, सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उसे कमाना बहुत मुश्किल है. ओके, जब हम किसी को देखते हैं कि कोई इंसान है बहुत इंटरेस्टिंगली कुछ काम कर रहा है, तो उसका इंटरेस्ट देखकर हम भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन. अंडरस्टूड? सो दिस इज द story of the chapter. Then you know this question answer. Who was the first boy to take over Tom's painting? Who was the first boy? You have to write Ben Rogers. Don't write only Ben. I will not give you mark. ओके, अगर बैन लिखा, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया और आपने अगर बैन लिखा है तो मैं उसके मार्क्स नहीं दूंगी. अंडरस्टूड? Okay, then here write the story that you will tell your sisters. Include many details to make your writing interesting. For example, how did the paint feel when you dipped in the brush? ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अभी हम लोग रिवीजन में वो नहीं लेंगे. जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो मैं करवा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ सोर्स. ओके, तो अ सोर्स इज राइटिंग दैट यू आर राइटिंग अबाउट. देन neutral summary is the common way of writing about sources. Okay, so these are the important things. Then cinquain. What is cinquain? Cinquain are a kind of poems that has 5 lines in certain pattern. Which is the pattern? Line 1 title, line 2 description, line 3 action, line 4 feeling, line 5 title. Okay, and the example is given about Mark Twain. Okay, so this is called cinquain. Then referring. What is referring? Referencing. Okay, किसी का रेफरेंस देना, किसी चीज़ का यूज़ करना सोर्स, एज अ सोर्स. Okay, so this was all about this story of this chapter. Now let me ask you some questions, because this is video, I cannot hear your answer, but be honest and give answer. Okay, the first question is, what was Tom especially scared of? I'll ask in online lecture also. फर्स्ट लेसन की जो भी क्वेश्चंस हैं, वैसे तो मैंने रिवीजन में लिए हैं. ओके, फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं मैं ऑनलाइन लेक्चर में भी पूछूंगी, और अभी वीडियोस में भी मैं पूछ रही हूँ. ऑनेस्टली आप आंसर दो. अगर नहीं आता है ना आंसर, तो आप फाइंड आउट करो, या तो नोट डाउन करके रखो, और ऑनलाइन लेक्चर में आप पूछ सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वाज टॉम स्पेशली स्कैर्ड ऑफ? किससे डर लग रहा था टॉम को? द आंसर इज टॉम वॉज स्कैर्ड ऑफ बेन रोजर्स लाफ. किससे डर लग रहा था उसको? कि बेन रोजर्स है वो बहुत ही हंसेगा. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट फन वॉज प्लान्ड बाय टॉम एंड हक फॉर दैट डे? ओके, टॉम और हक ने उस दिन के लिए क्या प्लान किया था? तो टॉम एंड हक हैड प्लान टू गो डाउन टू द रिवर एंड गो स्विमिंग. रिवर पर जाकर स्विमिंग करने का सोचा था उन लोगों ने. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर्क वॉज असाइन टू टॉम बाय आंट पॉली? आंट पॉली ने टॉम को कौन सा वर्क दिया था करने के लिए? सो द वर्क ऑफ पेंटिंग द लॉन्ग एंड हाई फेंस वॉज असाइन टू टॉम बाय आंट पॉली.
Okay. Next question is, what is the meaning of dark moment? The dark moment is the state of being disappointment. Understood? Okay. Which season is mentioned in the chapter? So what you will write? Summer season is mentioned in the text. Okay, next question is, what made Tom lose his all joy? टॉम का पूरा जो मज़ा है कैसे किरकिरा हो गया, किसने कर दिया? तो आंसर है द पेंटिंग वर्क ऑफ लॉन्ग हाई फेंस मेड टॉम लूज हिज ऑल जॉय. ओके, नेक्स्ट वन इज, बाय शोइंग हिज सोर फूट टॉम वॉन्टेड टू ट्रीट जिम. यानी कि अपना जो फूट है उस पर लगा हुआ था वो दिखाकर टॉम है वो बेन से क्या हासिल करना चाहता था? वो जिम को टॉम है वो जिम से क्या चाह रहा था? वो किस तरह से उसे ट्रीट कर रहा था? रैशनली, इमोशनली, प्रैक्टिकली या यूज़फुली? तो हम यहाँ पर लिखेंगे इमोशनली. ओके. Next question is, Tom had planned to go with Huck for. Where had Tom planned to go with Huck? The Tom had planned to go with Huck for swimming in the river. Next question, why did Tom start painting as fast as possible? Because ही सो आंट पॉली रिटर्निंग. क्योंकि उसने देखा था कि आंट पॉली वापस आ रही हैं. अच्छा, अब जो मैं नेम्स बता रही हूँ ना उसमें से एक है जिसने टॉम को हेल्प नहीं की थी फेंस पेंट करने में. कौन है वो? बिल फिशर है, जॉनी मिलर है, जिम है या बेन है? द आंसर इज जिम. जिम ने नहीं की थी, जिम भाग गया था. ओके. Okay, next question. When was Tom Sawyer asked to do the painting? टॉम सॉयर को कब बताया गया कि उसे पेंटिंग करनी है? तो टॉम सॉयर was asked to do the painting on Saturday morning. सैटरडे मॉर्निंग में उसे ये काम दिया गया था. ओके, नेक्स्ट वन इज, ओके लेट मी आस्क यू सम ट्रू फॉल्स. चलो ट्रू फॉल्स पूछती हूँ. टॉम वॉन्टेड टू गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग अलॉन्ग विथ जिम. ट्रू और फॉल्स? टॉम वॉन्टेड टू गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग अलॉन्ग विथ जिम. किसके साथ जाना चाहता था वो स्विमिंग? जिम के साथ? नो, हक के साथ जाना चाहता था. ओके, सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स इज, Ben Rogers imitated as the captain of the aeroplane. Ben Rogers है वो एरोप्लेन के कैप्टन की तरह बिहेव कर रहा था. इज इट करेक्ट? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. ही बिहेव लाइक द कैप्टन ऑफ द बोट. ओके, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स हो जाएगा. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स. एट लास्ट द पेंट विथ टॉम गॉट एग्जॉस्टेड. यानी कि ख़त्म हो गई थी. टॉम के पास जो पेंट था वो ख़त्म हो गया था. सो इट्स ट्रू, करेक्ट है ये सेंटेंस. नहीं तो वो और भी ज़्यादा कर सकता था. ओके, हाउ मैनी टाइम्स द होल फेंस वॉज पेंटेड. कितने टाइम्स हो गई थी पेंट फेंस? 3 टाइम्स. ओके, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स इज, Aunt Polly had given Tom the work of bringing water from the river.
आंट पॉली ने टॉम को रिवर में से वाटर लाने के लिए काम दिया। ट्रू और फॉल्स? इट्स फॉल्स, बिकॉज उस काम के लिए तो जिम था, टॉम को तो उन्होंने पेंटिंग का वर्क दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदर बॉयज मेड फन ऑफ टॉम सीइंग हिम पेंटिंग द फेंस। दूसरे बॉयज़ भी, जो टॉम है वो पेंट कर रहा था फेंस की, उसे देखकर उसका मजाक उड़ाया दूसरे बॉयज़ ने भी। सो व्हाट इज़ द आंसर? ट्रू, सबने हंसी उड़ाई थी उसकी। नेक्स्ट वन इज टॉम लेफ्ट पेंटिंग द फेंस एज सुन एज ही सो बेन रोजर्स अप्रोचिंग हिम। टॉम ने बेन रोजर्स को देखते ही पेंटिंग का काम छोड़ दिया। इज इट करेक्ट? नो, इट्स रॉन्ग। ओके, वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करने लगा, जिससे बेन रोजर्स है वो टॉम की तरफ अट्रैक्ट हुआ कि ये क्या कर रहा है इतना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स इज टॉम वॉज वेरी मच हैप्पी सीइंग अ लार्ज फेंस टू पेंट। टॉम है वो बहुत बड़ी लार्ज फेंस है वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। इज इट करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट। ओके, इट्स रॉन्ग। वो क्या हो गया था? दुखी हो गया था। अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट मी आस्क सम वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स भी आने वाले हैं एग्जाम में। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैडनेस? ट्राई टू गिव आंसर। वीडियोस देखते जाओ और आंसर बोलते जाओ। मैं सुन नहीं पाऊँगी आपके आंसर्स, बट यू शुड बी ऑनेस्ट। आपको अपने आप को चेक करना है कि आपको कितना आ रहा है। ओके, सो द मीनिंग ऑफ सैडनेस इज अनहैप्पीनेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैडनेस? अनहैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ फेंस, अ बैरियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंस? अ बैरियर। Meaning of full of life? It means lively or exciting. Okay. Then belong to means किसी का होना। Okay, to be somebody's property, किसी की प्रॉपर्टी होना। belong to, for example, this pen belongs to me, यानी कि ये मेरी पेन है। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें हैं। ट्रू फॉल्स MCQs हैं, फिर मीनिंग्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके, फिर एक्टिविटी में सिंक्वेन है, समरी है, रेफरेंस है, न्यूट्रल समरी है, ये सारी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट, अगर आप समरी याद रखोगे ना, सबकी स्टोरी याद रखेंगे ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, एनीथिंग यू कैन राइट इफ़ यू नो द समरी, इफ़ यू नो द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। एंड आई होप दैट आफ्टर रिवाइजिंग इट सो मैनी टाइम्स, ऑल द स्टूडेंट्स दे नो द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, किसका क्या रोल है, अगर ये सारी चीज़ें याद है ना, तो कोई भी ट्रू फॉल्स आएगा, कोई भी MCQ आएगा, कोई भी मैचिंग आएगा, कोई भी वर्ड मीनिंग आएगा, आपको सबको सब पता चलेगा। यू कैन राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस इफ़ यू नो द समरी और द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। और साथ साथ में आपको राइटर के, ऑथर के नेम्स भी याद रखने हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाइज एक्शन? हु इज़ द ऑथर? ऑथर मीन्स राइटर। कौन है राइटर इसके? मार्क ट्वेन। कौन है? मार्क ट्वेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड बैन ऑफर टॉम? बैन है वो टॉम को क्या ऑफर करता है? तो बैन ऑफर टॉम अ पार्ट ऑफ द एप्पल दैट ही वॉज ईटिंग। कॉम्प्रीहेंशन भी अच्छे से तैयारी करना, कॉम्प्रीहेंशन की भी। ओके,
कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको जैसे सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, कुछ भी कॉम्प्रिहेंशन में भी एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फाइनली ख़त्म हो रहा है। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन लेक्चर में यू कैन आस्क। अंडरस्टूड? सो वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2 रिविजन in next lecture. Till then, bye.